कि अभी वी कांट गेट इनटू एनी इंटीमेसी, वी कांट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, और मेरा मन नहीं कर रहा। फादर्स कम्स इन कि मैं बोलता भी हूँ, लिटरली मुझे सेक्स के लिए भीख मांगना पड़ता है। उसके ही हस्बैंड से उसे वो नीड नहीं मिलती है तो दे ऑल्सो गो आउट एंड देन दी कनेक्शन स्टार्ट बिल्डिंग। और वो फिर इतना क्लोज चला जाता है जब आपको कोई सुन रहा है, जिसने अगर आपको किसी ने पानी पिला दिया अगर आप प्यासे हैं तो फिर आप उसके लिए वॉर भी लड़ जाओ कि भाई मुझे इस इतना तो टच चाहिए। हो सकता है वो हद तक ही आ जाए, वो ना कहे कि अच्छा इंटीमेसी में जाओ, मुझे कर्डलिंग ही कर दो। कोई जेस्चर है फिजिकल अब्यूज का या मेंटल अब्यूज के जेस्चर्स ज्यादा बढ़ गए हैं रिलेशनशिप में। फिजिकल है तो डायरेक्टली गो फॉर डिवोर्स। यूज टू हो जाते हैं ना आप उस इंसान के, उसकी हर हरकत आपको पता है, कितनी चाय पिएगा, क्या पहनेगा। So today we have Khushbu Khushne with us, who is a therapist and counselor in relationships. She has been working on this profile for so long years, and I'm sure she must be experiencing so many different stories on relationship. I, Reena Chopra, founder and CEO for Sar Holistic Wellness and a parenting expert, has invited Khushbu Khushne to discuss more about parenting, father-mother relationships, and how it changes when the baby is born. So, welcome, Kushne, and we are very delighted to have you with us today. Thank you, Reena. Thank you so much for this podcast and for bringing me here. I'm so glad to connect with you, and we are working on almost the same lines, Yes. and that's great to connect with you. Thank you so much. So, since you have been working on relationships, so my first and foremost question to you is, statistics says that 55% of fathers, after having babies, after having children, fall for infidelity in some form, maybe physical form, maybe emotional form. So tell me, are you receiving such kind of cases where they have a guilt that they don't want to, or what are the reasons behind such infidelity? So your data is almost right, Reena. I say it's exactly what is going in our society. That yes, men go through this phase after having babies, but they also could go through this phase when they don't have babies. And the reasons are very common nowadays in marriage, in relationship, because there are lacking, people are lacking to connect emotionally. They are connecting responsible through responsibilities, they are connecting playing their roles, they are connecting through jobs, but they are not connecting emotionally. And that's the biggest gap. People need support and they go outside the relationship. Two people, when they are in love or they got arranged by their parents, they come with lot of dreams. Nobody thought of doing this. But because we are so imbibed of doing their roles and responsibility, we forget to build emotional connection. Right. And that's where they are going out. आई थिंक कहीं ना कहीं मदर्स भी ये रोल प्ले करते हैं कि आफ्टर द बेबी इज बोर्न, द चाइल्ड इज बोर्न, mothers are so involved with the children that they forget that there is a partner too. I agree, I understand Hmm. as a mother that there are so many things to do for the child because the child is just born, or it is just 1 year, 2 year, maybe a few months. But there is also a person who existed with you that suddenly disappears. आप उनसे कोई बात नहीं करते हैं, आप उनसे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, you want to sleep more, you want to pay all your attention to the baby, you're sleep deprived. तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आई थिंक बोथ आर राइट ऑन देयर पार्ट्स। मदर अपना बिजी हो जाती है एंड वांट टू गिव देयर 100% टू द चाइल्ड, एंड फादर्स आर स्ट्रगलिंग टू टॉक टू समबडी, टू बिल्ड कनेक्शन, टू टॉक टू समबडी, बट वो नहीं हो पाता। और जैसे ही कोई उस वनरेबिलिटी में कोई आपके साथ जुड़ता है, मतलब यू गेट इन्वॉल्व विद दैट पर्सन टू एन एक्सटेंड दैट यू फॉरगेट दैट यू आर मैरिड और you're a father, and it happens naturally. So what is your context on that? What is your insight? Right. See, nowadays, what is happening to motherhood? Motherhood is coming with lots of insecurity, lots of fear. अभी मेरे साथ कुछ बचपन में हुआ तो मैं एनी हाउ नहीं चाहूंगी मेरे बच्चे के साथ हो, तो मैं डे वन से प्रोटेक्टेड हूँ. When I'm overprotected, I don't trust people around me. If I have a support mechanism also, if I have my mother to take care of my child, I will not trust my mother. I will not trust my in-laws. I will not trust on maid,
the support system we have. So Absolutely. what happened? They want to do everything by themselves. Yes. Now, if anybody, you, me, anybody in this world will do everything by themselves, they got tired. Yes. And a tired person only expect thing from the other person कि इसको समझना चाहिए, है ना, मेल को समझना चाहिए कि मैंने 9 मंथ प्रेगनेंसी में रही हूँ और अब मैं इसकी केयर में बिजी हूँ और फिर ये बाहर जा रहा है, मतलब मेरा तो खराब ही हो गया ना सब कुछ। और आई थिंक वो समझने का, जहाँ आपने मेंशन किया, वो समझना भी वो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि खुद समझ जाओ, मैं बोलूंगी कुछ नहीं, आई विल से हाँ एनीथिंग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हाँ। तो वो कम्युनिकेशन गैप राइट। भी जो है ना सबसे बड़ा, कि अज्यूम करना और एक्सपेक्ट करना, वो बहुत डेंजरस है। हाँ वो काफी है। तो एक्सपेक्टेशन का एक बहुत प्यारा सा कंसर्न हम शेयर करते हैं कि एक्सपेक्टेशन की एक नियति है कि वो टूटेगी। ओके। बट एक्सपेक्टेशन को आप ब्रिज कैसे कर सकते हो? व्हेन यू स्पीक। सो इफ आई हैव माय 40th बर्थडे, आई आई हैव टू मेंशन टू माय पार्टनर कि भाई मुझे बिग सेलिब्रेशन चाहिए। प्लान चाहिए जी। कह दो ना। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट categorized into these species, those who don't talk, we speak। बोल दो। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो बहुत ज्यादा हो गया कि समझ जाना चाहिए। वो हो गया है, मतलब हमारी मदर्स के भी 40 इयर्स बर्थडेज मने होंगे और हम सबके लिए हुआ होगा, आई नो। मैं इस जनरेशन को उस जनरेशन से कंपेयर नहीं कर सकती, बट इमोशंस के लिए जनरेशन्स नहीं बदलती। राइट। लव की फीलिंग 40 इयर्स पहले भी एक जैसी थी और अभी भी है, बट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ डेटा कम इन बिटवीन, जहां आप अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर करने में आपको लगता है यार ये तो समझ जाने वाली बात है। मैं तो सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रही थी, यहाँ पे मैं बताऊं जाके कि मुझे चाहिए। आई वांटेड दोस बलून्स, दोस राइट इन माय रूम, एंड दैट आई सॉ इट ऑन सोशल मीडिया। ऑल हस्बैंड्स आर डूइंग इट, राइट। नॉट डूइंग। आई हाँ थिंक वो तो सेलिब्रेशन, नहीं है उसकी लव लैंग्वेज। या वो सेलिब्रेशन जो डे रहता है, वो फाइट डे बन जाता है। लाइक यू डिड नॉट डू दिस, यू बहुत ज्यादा। दैट, यू डिड नॉट बॉट दैट फेवरेट केक, और आप भूल ही गए, ऑल दैट हैपेंस। एंड फिर बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट में कहते हैं, अरे यार एक फूल ही ला देता, वो भी नहीं लाया ये तो। आई तो थिंक यू नो men are कहाँ आप wired सरप्राइज। differently. Men are wired differently. उन्हें बताने से वो समझ जाते हैं। आई थिंक अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं, बट अगर आप बताओगे करते हैं। नहीं और सिर्फ मन में रखते जाएंगे, तो उनके लिए भी समझना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक स्ट्रेसफुल हो जाता है कि अब पता नहीं क्या बोल देंगी, अब पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, पता नहीं क्या चाहती हैं, व्हाट वुमेन वांट्स। तो ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ उनके साथ आ जाता हाँ है। हाँ, इस पे तो अगर 1000 लोग भी बुक्स लिखते हैं तो वो डेटा इनकम्प्लीट ही रहेगा। कोई फादर आए हो आपके पास, या कोई मेल मेंबर आए हो, दैट आई हैव फॉलन फॉर सम पर्सन, बट आई हैव अ गिल्ट टू, मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ, बट घर में शांति नहीं है, बिल्कुल लड़ाई होती रहती है, मैं कोई भी बात करना चाहता हूँ तो या तो वो चिल्ला देते हैं मेरे वाइफ, या रो देते हैं। तो कभी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं आपके पास? काफी आते हैं। बिकॉज एक तो गिल्ट में है, सोशली एक्सेप्टेंस में दिक्कत होती है, तो हम जैसे लोग होते हैं उनके पास जहाँ के वो ये बात कह सकते हैं, जहाँ उनको नॉन जजमेंटली ट्रीट किया जाएगा। एंड रीजन सबके अलग अलग है, क्योंकि उस जिस जिस इंसान ने ऐसा किया है उसकी एक लव लैंग्वेज है। बहुत टाइम तक जब आप उसकी लव लैंग्वेज को अटेंड नहीं करोगे तो वो ऐसा कर जाता है। मैं हम्म। इसको जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं इसको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेल्स का एक लैंग्वेज जो यूजुअली देखा जाता है फिजिकल टच, अगर वो उनको बहुत टाइम तक नहीं मिलता, वो 9 मंथ्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि उनको भी पता है राइट। वाइफ ने कंसीव कर रखा है। राइट। बट जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी कि अच्छा ठीक है अब आप हेल्दी हैं, आप दोबारा से अपनी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तब अगर उसको नहीं मिलता तो वो उसका भी तो पूरा मैकेनिज्म है इमोशंस का, हार्मोन्स का, जो डिस्टर्ब होता है। फिर बाहर कहते हैं ना, फिर जो भी चीजें समझ में आ रही हैं तो, लेकिन वो करने के बाद उसको गिल्ट भी आता है, क्योंकि अल्टीमेटली बाहर की चीजें फैंसी कुछ ही दिनों के लिए है। मतलब आप रोज बाहर का खाना नहीं खा सकते, आपको घर की दाल रोटी कुछ दिन बाद अच्छी लगती है, बट जब वो फिर गिल्ट में आता है वो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। राइट। क्योंकि वन फैक्ट इज, ये बातें छुपती नहीं है। वाइफ्स आर, मतलब पता चलता है, अगर वाइफ कर रही है तो भी, या मेल कर रहा है तो भी, जब ये पता चलता है तो उस गिल्ट से निकलना
मेन के लिए काफी डिफिकल्ट है। पैरेलली, क्योंकि फीमेल को वो पेन जब तक रिसीव हो चुका होता है कि भाई ये मेरे साथ तो उसने गलत कर दिया ना, मैं तो इसी का बच्चा पैदा कर रही थी और राइट। ये मुझे ही चीट कर गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट वो हो चुके होते हैं। फिर उनको साथ लाना एक बहुत इंडिविजुअल प्रोसेस है। तब आप दोनों कपल्स को बैठ के समझा पाते हैं कि देखो, अ, आपके पास चॉइसेस हैं, एक चॉइस लो और एक रिलेशनशिप को या तो आगे बढ़ने दो या फिर क्लोजर पे जाओ। राइट। बहुत डिफिकल्ट है तो क्लोजर पे जाओ। राइट। अगर है, आपको समझ में आया, क्योंकि इट्स हार्ड टू बी एम्पैथेटिक इन रिलेशनशिप। आप एब्सोल्युटली। वैसे दुनिया भर से एम्पैथेटिक हो सकते हैं, रिलेशनशिप में आते हुए थोड़ा एम्पैथेटिक होना राइट। मुश्किल है, और स्पेशली इस फैक्टर में, व्हेन देयर इज अ चीटिंग फैक्टर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जैसे कपल्स यू के लिए। मेंशन खुशबू, कि इंटीमेसी जो होती है दैट्स अ लव लैंग्वेज फॉर मैन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और जब वो राइट। पूरा नहीं होता है देन नेचुरली दे फॉल फॉर समबडी आउटसाइड। तो हम्म। इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड, वो 9 मंथ्स तो आप उस प्रोसेस में रहते ही हैं, बट कई मदर्स ऐसे भी होते हैं, डू नॉट टच मी फॉर्म में आ जाते हैं कि अभी वी कांट गेट इन टू एनी इंटीमेसी, वी कांट गेट इन टू एनी रिलेशनशिप, और मेरा मन नहीं कर रहा। बहुत हम्म। सारे मीम्स भी मैंने ऐसे देखे थे, आउट ऑफ 365 डेज ओनली 11 डेज वी गेट इंटीमेटेड इन द एंटायर ईयर। तो हम्म। ये आपके साथ डिस्कशन होता है वेर इन फादर्स कम्स इन कि मैं बोलता भी हूँ लिटरली मुझे सेक्स के लिए भीख मांगना पड़ता है, दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस हैपन? आते हैं रीना, ऐसे भी लोग आते हैं कि वो खुद से मांग रहे हैं और वो बोल रही है कि डोंट टच मी, माय बॉडी इज पेनिंग, शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। क्या करेगा अगला? वो कह भी रहा है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, दिस इज माय लव लैंग्वेज, प्लीज हेल्प मी आउट, बट शी इज ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग, ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग, तो समवन हैज टू विन। तो वो दोनों विन करने की जगह दोनों फेल ही हो रहे होते हैं। if a man is craving for some physical need, she is also craving for something. अब वो met नहीं होगा ना जब तक, तो आप दोनों ही फेल होंगे। तो इसका सोल्यूशन फिजिकली क्या है? तो सो व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? solution is that you need to communicate it very openly, that that time you hurt me and your hurt give me a sense of insecurity or whatever unmet need. First you have to fulfill that, एंड देन पैरेलल दिस पर्सन नीड्स टू से कि भाई मुझे इस इतना तो टच चाहिए। हो सकता है वो हक तक ही आ जाए, वो ना कहे कि अच्छा इंटीमेसी में जाओ, मुझे कर्डलिंग ही कर दो, क्योंकि ये नीड है उसकी। तो राइट। दीज गाइज नीड टू टॉक, बट व्हाट कपल्स आर डूइंग, दे आर एलिगेटिंग ईच अदर, दे आर ब्लेमिंग ईच अदर। अभी राइट। मेरी नीड है, पानी पीना है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे प्यार से तो बात नहीं कर पाऊंगी ना रीना, कैसे राइट। करूंगी? राइट। But the right way is to communicate, the right is to heal individually। कैसा क्या है जो मैं अपनी नीड्स को चैनलाइज नहीं कर पा रही, या मैं अपने आप को, मैंने इतनी बात को बुरा लगा लिया, या मुझे इतना फिजिकल नीड है कि मैं उसके इमोशन समझ के अपनी नीड को चैनलाइज नहीं कर पाता, देन थिंग्स कैन स्टार्ट वर्किंग। एंड आई सो थिंक दो। अगर आप खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आई थिंक यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट और अ प्रोफेशनल। इट्स वेरी नॉट मच। कि कुछ ट्रॉमा हो गया है, इट्स लाइक कि आपको प्रॉब्लम आई है और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो और किससे इसके बारे में नहीं बात कर सकते हैं। इट्स बेटर दैट यू शुड गो टू अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर and who can give you at least a direction. Therapist never provides you a solution. They always gives you choices नो। and they show you राइट। perspective. तो बेटर है कि आप राइट। किसी प्रोफेशनल के पास जाएं जो आपको थर्ड पर्सपेक्टिव भी दिखा पाए कि ये भी मुमकिन है, लेकिन सिंस आप अपने ईगोज इंडिविजुअल ईगोज में इतना एंगेज हैं कि वो थर्ड ऑप्शन आप देख ही नहीं पा रहे। We have mentioned like men fall for infidelity after having a child or having a baby, but data says that mothers also fall for infidelity and also in a parallel form of guilt because they get involved emotionally. Sometimes they seek somebody to talk to, but things go beyond. तो ऐसे भी केसेस आपके पास आए हैं, and what is your suggestion on it? बिल्कुल रीना, बिल्कुल आए हैं। इनफर्टिलिटी के रेट्स इस वक्त इतने हाई हैं कि आप इक्वल प्रपोर्शन में ही समझो, बिकॉज
ऐसा नहीं है कि मेल है तो वो सिर्फ फिजिकल नीड के लिए गया। विमेन्स की इमोशनल नीड्स इस तरह अनअटेंडेड हैं कि उनको सिर्फ बात करने के लिए कोई चाहिए होता है। लेकिन जब उसके ही हस्बैंड से उसे वो नीड नहीं मिलती है तो दे ऑल्सो गो आउट एंड देन द कनेक्शन स्टार्ट बिल्डिंग। और वो फिर इतना क्लोज चला जाता है जब आपको कोई सुन रहा है, जिसने आपकी अनमेट नीड, अगर आपको किसी ने पानी पिला दिया अगर आप प्यासे हैं, तो फिर आप उसके लिए वॉर भी लड़ जाते हैं। राइट। And then that emotional connection go on and on and on and ultimately leads to the physical connection, जो कि किसी भी रिलेशनशिप का एक पार्ट है। जिससे राइट। आप इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, आप सिक्योर फील करते हैं, फिर आप अपना फिजिकल भी उसे दे सकते हैं, राइट। जो आपने इनिशियल फेज में अपने रिलेशनशिप में किया होता है। राइट। And I have cases where women are going through this and they are also going through a phase of, guilt, but unable to come out of it. क्योंकि वो नहीं, वो फेस छोड़ने का मन ही नहीं है। पता है गलत है, राइट। बट क्या करेगा अगर मुझे इमोशनली मिल रहा है ना वहां से, अनबायस्ड मिल रहा है। अनकन यहाँ तो इन लॉज के भी अनकंडीशनल मिल रहा है, अनबायस्ड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ तो फिर मुझे उसके लिए करना भी है ना, उसका बच्चा भी देखना है, उसके इन लॉज भी देखने हैं, मतलब उसके पेरेंट्स भी देखने हैं। वहां तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। राइट। तो दोनों जेंडर्स के रीजंस अपनी अपनी तरफ से स्ट्रांग है कि वो जाते क्यों है। कई बार ऐसा भी बट होता है कि 18-18 साल का रिलेशनशिप होता है, 19-19 years ऑफ मैरिज, एंड इट्स ब्रेक्स डाउन ऑन अ सिंगल कॉन्टेक्स्ट कि तुम मुझे समझते नहीं हो। हाँ, So you've been in a relationship for 19 years, 20 years, and then ultimately you say that you don't understand me. How does that happen? दैट्स ऑल्सो हैपन बिकॉज बहुत टाइम तक ना हम जब सिर्फ गिवर होते हैं, और आज जब मैं बहुत ऐसे वर्ल्ड में हूँ जहाँ सेल्फ की बातें हो रही हैं, जहाँ पे आइडेंटिटी की बातें हो रही हैं, जहाँ पे सेल्फ केयर की बातें हो रही हैं, सब सेल्फ लव की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो मैं भी झांक के देखूंगी ना कि मैंने अपने लिए क्या किया। Right. आई वॉज तो ऑलवेज गिवर, बट आज जब मैं अपने लिए बात करती हूँ तो मैं बुरी बनूंगी। और करनी चाहिए, बट ये शुरू में करनी चाहिए कि मुझे अपना इतना पोर्शन तो देखो चाहिए, उसके बाद आई एम वेल इक्विप्ड टू फुलफिल माई कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। होता है कुछ नहीं कि हम 19 साल से 20 साल से इकट्ठे हैं, और क्या हम बात करना बंद कर देते हैं, क्या हम कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, कि दूसरा इंसान हमें समझना बंद कर देता है? वेयर टू वी गो रॉन्ग? एक कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप में जिसे हम कहते हैं कि मोनोटोनी आ जाती है। यूज टू हो जाते हैं ना आप उस इंसान के, उसकी हर हरकत आपको पता है, कितनी चाय पिएगा, क्या पहनेगा, उसको नमक कितना पसंद है, उसको मिर्ची कितनी पसंद, अब इतना यूज टू हो गया, क्या नया रहा। सबसे बैड फेज है मोनोटोन अपने रिलेशनशिप में आना। अब उसके बाद आप क्या क्रिएटिव कर लोगे? अच्छा, उसके मन का खाना बना देते हो, उसके रिलेटिव्स को घर पे बुला लेते हो, आप अपने रिलेटिव्स के घर चले जाते हो, वो आपको ट्रिप पे जाने के लिए मना नहीं कर रहा, फ्रीडम भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, बचा क्या न्यू क्रिएट करने के लिए? तो वो 19 ईयर्स तक जब आप एक ही चीज रोज ही देख रहे हो उस इंसान में, वो आप में देख रहे हैं, आप उसमें देख रहे हो, तो एक ब्यूटी की भी हद होती है ना। जैसे जो लोग पहाड़ पे रहते हैं वो पहाड़ों से थक जाते हैं, हम लोग जो पहाड़ पे जाते हैं उनको लिए बड़ा हैपनिंग है। राइट। तो वो जो पहाड़ पे घूमने आया, वो इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर किया, वो तो हैपनिंग लगेगा ना। राइट। 19 ईयर्स तक वही पहाड़ देखते रहोगे, मतलब लगेगा यार, मतलब जिंदगी में है क्या? Your suggestion on this, like we stop living together after few years, or how should we go about it? No, you have to start creating newness in your life. What we do with our old clothes, do we throw them? Sometimes we do. जब उस पे खुद ही दीमक लग गया ना, तब भी उसका इलाज है, या उसमें रफ। सो व्हाट वी डू, यू वेयर अ साड़ी टुडे, ये साड़ी बहुत प्यारी है ना, माय फेवरेट कलर। अगर ये मेरे पास हो तो मैं तो इसको पहले 19 साल तक पहनूंगी। मैं बोर हो गई तो मैं इसका ड्रेस बनवा लूंगी, साड़ी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। Right. अगर मैं उससे भी बोर हो गई तो मैं अपनी नीज को दे दूंगी, तू पहन। Right. मैं कुछ तो न्यूनेस करती रहूंगी ना। Right. सी दैट डिपेंड्स रीना ऑन द वैल्यू सिस्टम वी कैरी फॉर आवर रिलेशनशिप्स। Right. इट्स ऑलवेज इजी टू एस्केप, Right.
तो न्यूनेस क्रिएट करने के लिए सीखो, नई नई चीजें पढ़ो, सीखो। रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग है, हैपनिंग भी है। राइट। बट दिस आ रहा है ना बहुत सारा ऑप्शन, छोड़ दो। नौकरी अच्छी नहीं लग रही, छोड़ दो। मेड अच्छी नहीं लग रही, छोड़ दो। पति अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दो। बीवी अच्छी नहीं लग रही, छोड़ दो। काम मत करो। आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि देर इज अ कपल हु गोज ऑन ब्लाइंड डेट्स, एज इन उनको दे यस। हैव बीन इन रिलेशनशिप फॉर 20 years, so they make out a day like Wednesday or any weekday or weekend wherein they decide a place and ask each other to go there and be there. यस। The husband doesn't know what wife is wearing, wife doesn't know what husband is wearing. तो आई थिंक राइट। ये एक एग्जाम्पल है न्यूनेस क्रिएट करने का। यू हैव टू ट्राई न्यू आइडियाज। कैसे कर राइट। सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ हेयर कट, यू कैन डू राइट। ड्रेसिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन गिव अप करना इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन एंड दैट टू अर्ली। तो ये क्यों हो रहा है कृष्ण कि बहुत सारे जो डाइवोर्सेस हैं वो स्काई रॉकेट हो गए हैं। मीन्स इट इज इजी टू गेट rid of a person so easily। मतलब डाइवोर्सेस लेना इज, पहले हम सुनते थे कि उस फलाने फलाने का डाइवोर्स हो गया, बहुत बुरा हुआ, बट आजकल तो सेपरेशन हो गया। हाँ, अच्छा किया तूने डाइवोर्स लिया, बहुत अच्छा किया, एक रोज को फ्री हो गई। फ्री हो गई, यू स्टार्ट योर न्यू लाइफ, लेट्स सेलिब्रेट डाइवोर्स। डाइवोर्स पार्टीज होती हैं। तो इसके राइट। ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लाइक आर वी आर आर culture, our society is heading in a right way, and how we should look upon this? थी मैं डिवोर्स को टैबू नहीं देखती, फॉर श्योर। बट मैं डिवोर्स सिर्फ तब सजेस्ट करती हूँ जब फिजिकल अब्यूज बहुत ज्यादा है। कोई भी लेडी या कोई भी मेल किसी रिलेशनशिप में फिजिकल अब्यूज लेने तो नहीं आया है। अगर फिजिकल अब्यूज है तो गो डायरेक्टली फॉर डिवोर्स, ज्यादा मत सोचो। बाकी जो केसेस हैं डिवोर्स के, वो सिर्फ है कि आप अपने ईगो ड्रिवन बहुत ज्यादा है, आप एक्शन लेना नहीं चाहते। कितना आसान है रीना कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर से फोन करके पूछ लूं, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, कि बताओ मेरी शादी का क्या होना है। वो आपको कोई एक्शन नहीं बोलेगा, वो कहेगा अच्छा देखो ये है, थोड़ा ठहर जाओ, या कहेगा कि तुम ले लो, ये रिश्ता काम नहीं करेगा। एंड देन आवर माइंड स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज वी नीड थिंग्स इंस्टेंटली। रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। आज से 20 साल भी रिलेशनशिप में ना चैट जीटीपी काम करेगा, ना ही कोई टेक्नोलॉजी काम करेगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इमोशंस। Right, आप लोग अपना सब कुछ देते हैं, बहुत हिंदी में पहले बोलते थे तन मन धन का रिश्ता है। right, इसमें इंस्टेंट चीजें काम नहीं करती, एंड वी आर इनटू एन एरा जहां पे हमें इंस्टेंट चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ब्लिंकिट आ जाएगा, जोमैटो आ जाएगा, कुछ भी ले लो। तो कहाँ से पेशेंस है? और रिलेशनशिप इज अ पेशेंस टास्क। Relationship is a task where you have to work on your ego. It's a task where you have to heal your past. आपके साथ में बहुत कुछ हो सकता है। आपने अपने पेरेंट की लाइफ बहुत वर्स देखी होगी, मैंने देखी है अपने पेरेंट्स के झगड़े बहुत बचपन से। होगा इफेक्ट, काम करो। ऑप्शन है, आप रिश्ता छोड़ सकते हो, इजी है, एलिमनाई ले लोगे, बच्चे को दे दोगे। बट एक पेरेंटिंग, बिकॉज यू आर पेरेंटिंग, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो कि एक बच्चा ही आगे जाके वो बनता है जो अपने पेरेंट्स को देखता है। right, तो जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना दिन में, कि मैम मेरा एक बच्चा है, मैं स्टक हूँ रिलेशनशिप में, तो कहाँ से आप निकलोगे ना? आप, एंड मैं उससे फिर एक सवाल करती हूँ कि व्हाट यू वांट, तो वो कहेगी मुझे, या कहता है मुझे कि वो बदल जाए ना। तो मैं वो कॉन्वर्जेशन मोस्टली होल्ड कर देती, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है आपका कि आपको पहले बदलना होगा रिश्ता चलाने के लिए। right, बुरा आपको लग रहा है। तो जो हमारा जो अभी इंडिया में जो रेशियो चल रहा है डिवोर्स का, ये एनी हाउ स्कैरी है। right, बट लोग क्योंकि एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, आप उनको कोई चूरन दे दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए पतला होने के लिए, दे आर क्वाइट हैप्पी। right. बट जिम नहीं जाना है, वर्कआउट नहीं करना है, तो ये रेशियो हर किसी एरिया में है लाइफ में। तो रिलेशनशिप में भी लोग इंस्टेंट आते हैं, Instant solutions. इंस्टेंट सॉल्यूशंस चाहिए, ये बदल जाए बस। जब कपल सेशंस होते हैं तो वो मुझे कहती है मैम देखो इसकी गलती है, वो कहता है नहीं मैम इसकी गलती है। बट बिकॉज माई वर्क इज दैट, तो आई होल्ड बोथ ऑफ देम। देखो तुम्हारी इंडिविजुअल गलतियां है पहले। Right.
सो स्कैरी है, इंडिया का रेशियो भी आज की डेट में स्कैरी है। लोग यूएस कॉन्सेप्ट को अडाप्ट कर रहे हैं, बट देयर डिवोर्स प्रोसेस इज वेरी वेल स्टैब्लिश्ड। वो ब्लेम गेम से डिवोर्स नहीं करते हैं, वो विक्टिम मोड में जाके डिवोर्स नहीं करते हैं। दे टुक इट इन अ बेटर वे। तो जब हम अडाप्ट करते हैं तो हम पूरा अडाप्ट नहीं करते, हम आधा जितना हमें रिक्वायर्ड होता है ना अच्छा अच्छा लग रहा है। उतना ले लो। हाँ, उतना ले लो जितना हमारे से हो सकता है, बाकी छोड़ दो। एक आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, डुअल इनकम नो किड्स, डिंक। इसमें क्या हो रहा है कि कपल्स शादी कर लेते हैं एंड दे लिव टुगेदर बट दे डू नॉट वांट एनी चिल्ड्रन, and it's राइट। picking up too much in India, and the ratio of women getting pregnant or couples having pregnancy is coming down. तो राइट। ये क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? कपल्स बच्चे क्यों नहीं करना चाहते, क्यों वो अकेले रहना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, करियर करना चाहते हैं? सो क्या ये पहले नहीं हो रहा था? क्या पहले पेरेंट्स घूमते नहीं थे, या करियर परफॉर्म नहीं करते थे, या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करते थे? देन व्हाई दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल इनकम एंड नो किड्स इज पिकिंग अप? ये इंटरेस्टिंग है। सो फ्रीडम वर्ड हमने कई बार सुना है, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, है ना, एंड एक्सप्लोरिंग। सो फ्रीडम का हमने मायने बदल दिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी हमेशा से इंडिया में, फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम रेस्पेक्ट करते हैं। बट अभी हमने जो सेल्फ फ्रीडम को डेफिनेशन दिया है वो यही दिया है कि अगर मैं रिस्ट्रिक्ट हो गई या मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया तो मैं फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। एंड देर इज ऑल्सो पैरेलली फैक्टर, फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। जो पैसे से हो सकती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं, जैसे हम पेरेंट्स की केयर कर सकते हैं किसी को, अटेंडेंट को लगा के या नर्स के थ्रू। बट जब खुद करनी पड़ेगी तो फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को चाइल्डहुड से ही आ जाता है, जब हर चीज उसको आप प्लेट में करके देते हैं। तो ये उसका अब का क्रिएटेड नहीं है, हुआ तो उसके चाइल्डहुड से ही है कि फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसकी दी थी, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सब कुछ करके दिया। अब जब वो बड़ा हो रहा है और देख रहा है यार एक बच्चा कितनी एनर्जी लेता है, बच्चा होने पे ले हमारे। जाता है, आपका करियर ले जाता है, आपका घूमना फिरना सब बंद हो जाता है। आई थिंक वो जो फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने कहा, वो न्यू जनरेशन को रोक रहा है कहीं ना कहीं, कि अब काफी वो रोक रहा है। पेरेंट्स नहीं बनेंगे और अकेले ही सरवाइव करेंगे। और रीना इसका एक और एक पहलू है कि ये जब फेज चला जाता है ना, 38 तक ये रहता है, 36 37 तक, इसके बाद जब वो प्रेगनेंसी अब उनको अकेला लग रहा है, उनको फ्यूचर की जिम्मे टेंशन हो रही है कि यार अब हमारे फ्यूचर में हमें कौन देखेगा। राइट। होती है, मतलब इन्हीं कैटेगरी ऑफ लोगों में से कुछ लोगों को ये फियर आने लगता है, क्योंकि फियर है, एक अभी है तो एक बाद में एक और आएगा। तो फियर ऑफ तब वो जब लोनलीनेस, फियर ऑफ लोनलीनेस जब आता है, क्योंकि आपने हम्म, डिसाइड किया था कि हम किड्स नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली हस्बैंड गेट्स बिजी इन हिज ओन वर्क, वाइफ गेट्स बिजी इन हर वर्क, क्योंकि वो काम में इतना इन्वॉल्व कर जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो फिर से वो फियर ऑफ लोनलीनेस या इमोशनल लोनलीनेस फील हाँ, करता है, दैट नाउ आई डू नॉट हैव एनीबॉडी टू रिलाई ऑन और टॉक अबाउट, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ओल्ड हो जाते हैं इस दौरान। और जैसे जैसे आपका आप बड़े होते हैं, आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स भी कम होता जाता है, नाउ यू डू नॉट हैव एनीबडी राइट। नेक्स्ट टू रिलाई अपॉन। तो जब राइट। फियर ऑफ लोनलीनेस आने के बच्चे हो गए ना, फ्रेंड्स के भी बच्चे हो गए, लग आप तो अकेले रह गए। तो उस दौरान क्या क्या सिचुएशन होती है? हाउ डू दे दीज कपल्स रिएक्ट देन? They react, they go for IVF और they go for adoption। कई लोग ऐसा करते हैं कि जाते हैं, या फिर वो जो जिस तीन तरह की कैटेगरीज बना सकते हैं यहाँ पे। वन, पीपल गो फॉर आईवीएफ। सेकेंड, दे अडॉप्ट। और थर्ड, दे मेक देमसेल्फ मोर स्ट्रोंगर टू डील विद द फ्यूचर। राइट। जैसे आई हैव एन सर, मैं जब जॉब करती थी तो मेरे एक सर थे, एंड ही वाज क्वाइट एल्डर देन मी उस टाइम पे, एंड ही कैरीज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। तो हमें ना काफी होता था कि सर कैसे मैनेज करते हैं ना, यू नो। एंड उनकी वाइफ तो खैर नहीं जॉब करती थी, बट वी कैन सी द वाइफ स्ट्रक्चर ऑन इंस्टाग्राम की कैसी। हमें बहुत टाइम बाद पता चला कि इनके बच्चे नहीं है, ओह। but they both are growing so well, they exploring the world, they are just tracking the mountains, they are doing different different things। तो आपके माइंडसेट बहुत मैटर करता है।
अगर आप बचपन से फियर से ऑपरेट करते आ रहे हैं या टीन एज में आपके फियर है, तो आप हर स्टेज पे फियर से ऑपरेट करेंगे। बट अगर आप पहले से स्ट्रांग है, आपके वाइज बहुत क्लियर है, तो आप ये तीसरी कैटेगरी में लाए होते हैं कि ठीक है मेरे बच्चे नहीं है, बट आई मेक माई सेल्फ सच अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी, सच अ स्ट्रांग फ्यूचर, कि कोई भी नहीं होगा, आई मैनेज। हम्म। तो तीन कैटेगरी में जाते हैं लोग। इट ऑलवेज कम फ्रॉम माई इमोशन, फियर या फोमो या लोनलीनेस। ये सारे जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, उसके हिसाब से हम अपने डिसीजंस मेकिंग करते हैं। Okay, Khushbu, I want to know the five top signs that every couple must notice or should not ignore before it reaches to a point wherein you want separation or you get into constant fights. तो वो पांच कौन से साइंस हैं जो हर कपल को mindfully वॉच करने चाहिए, that this is happening to me and it's time that we should communicate more or we should seek professional help. So, Reena, the first top most फैक्टर इज, द साइन इज कि अगर आपको अपने ही रूम में ना रूममेट जैसा फील हो रहा है, तो साइन है, स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका इमोशनल कनेक्शन का थर्मोस्टेट काफी लो जा रहा है। सेकंड है, जब आप झगड़ ज्यादा रहे हैं और बात कम कर रहे हैं, Right, इट मीन्स आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ अपने ब्रेन में बना चुके हैं, जो आपको एनी हाउ सॉल्व करने पड़ेंगे। right, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप घर के बाकी चीजों के लिए बहुत अलर्ट हैं, लेकिन अपने पार्टनर की नीड्स के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं है। right. Very क्योंकि important. रहे तो कमरा भी बुरा लगेगा, झगड़े भी होंगे। तो Right, ये है कि आपको जब आपके लिए बाकी सारा इंपॉर्टेंट है, मैं कैसी लगूंगी या मुझे आज ड्रिंक पे जाना है, वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दूसरे की नीड्स के लिए आपका कोई कंसिडरेशन नहीं। right. फोर्थ इंपॉर्टेंट इज, जब आप अपने फाइनेंसेस और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना नहीं जानते अपने रिलेशनशिप के एंगल में। तो कई बार बहुत सारे लोग सिर्फ करियर ओरिएंटेड होते हैं और वो रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट नहीं पाते, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। ऐसा फीमेल्स भी करती हैं, मेल भी। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे प्रोफेशनल और पर्सनल में, तो भी एक साइन Right. है। एंड फोर्थ फिफ्थ इज कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई जेस्चर है फिजिकल अब्यूज का या मेंटल अब्यूज के जेस्चर्स ज्यादा बढ़ गए हैं रिलेशनशिप में, फिजिकल है तो डायरेक्टली गो फॉर डिवोर्स, बट अगर मेंटल चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मेंटल टॉर्चर, मेंटल अब्यूज बढ़ गया है, तो गो फॉर अ हेल्प। ये आप डील नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स के पास लेके जाएंगे तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे, क्योंकि वो भी उतने ही वेल इक्विप्ड है Right. जितना उनकी लाइफ में गया है, और वो अपने बच्चे का साथ देंगे। और आई थिंक if you want a good mental healthy children at your place, अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा मानसिक रूप से अच्छे से ग्रो करे, तो आपको ये अगर साइंस आ रहे हैं तो इमीडिएटली आपको हेल्प सीख कर लेनी चाहिए। एंड इसमें कोई कर देनी शर्म की चाहिए। बात नहीं है, इसमें कोई टैबू नहीं है। जिस तरह आप खांसी जुकाम की मेडिसिन लेते हैं, अगर आपका मेंटली बर्डन बढ़ गया है, सो देर इज नो हार्म इन सीकिंग। खुशबू, क्या होता है कि जब डाइवोर्सेस होते हैं या रिलेशनशिप नहीं चलता, तो उसमें मदर्स को बहुत ज्यादा ब्लेम किया जाता है। ये तो अपने करियर में बिजी है, इसको सिर्फ अपनी जॉब की पड़ी है, ये सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान देती है, ये सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ रहती है, इसको सिर्फ अपने फैशन का क्लोथिंग का ही पड़ा है। डू यू थिंक द सोसाइटी जजेस द मदर मोर देन द फादर? फादर को इतना ब्लेम नहीं किया जाता जितना मदर्स को किया जाता है। ये अच्छे से खाना नहीं देती होगी, ये ध्यान नहीं रखती होगी, ये अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से नहीं करती होगी, ये ट्रैवल ही करती रहती है। ड्यू टू वर्क ऑल्सो अ लॉट ऑफ मदर्स ट्रैवल नाउअडेज। तो उस राइट। सिनेरियो में इन जजमेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? लाइक दिस इज वेरी प्रेशराइजिंग ऑन एनीबडीज मेंटल हेल्थ। तो उन उन सिनेरियो में क्या करना चाहिए? ओके, तो ये सवाल जो है ये है कि जब डिवोर्स फेज में वो जा रहे हैं, जब तब उन पे सेपरेशन जो एलिगेशंस है। जब सेपरेशन प्रोसेस में चले जाते हैं लोग, या सेपरेशन हो जाता है, द सोसाइटी ऑलवेज हम्म। ब्लेम्स द मदर मोर, जजेस हर मोर, कि इसका कोई रिलेशनशिप रहा होगा, या ये घर में अच्छे से सर्व नहीं कर रही होगी, या बच्चों को ध्यान नहीं दे रही होगी, ये काम में ही हमेशा बिजी राइट। रहती है, लेट लेट आती है ऑफिस से। ऑल दोज जजमेंट्स, ऑल दोज टॉन्ट्स गोज टू द मदर मोर।
राइट, राइट। विदाउट ये विदाउट बात बिल्कुल। के फादर में भी कोई हम्म, प्रॉब्लम हो सकती है, या मे बी ही इज नॉट बीइंग टेकिंग इनफ केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मे बी इज नॉट इन्वेस्टिंग टाइम। तो ऐसे भी तो सिनारियोज हो सकते हैं, बट द वर्ल्ड डजंट टॉक अबाउट इट, दे आर ऑलवेज जजिंग द मदर्स मोर। राइट। हम ये डिनाई नहीं कर सकते, ये पुरुष प्रधान समाज है, जहां पे पुरुष के लिए हमेशा ये एंगल छोड़ दिया गया है कि अगर बच्चा या शादी नहीं चली तो उसमें औरत का ज्यादा हाथ होता है। आप हिस्ट्री में भी जाएंगे तो देखेंगे कि विमेन पे हमेशा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जब से वो पैदा होती है उसके ऊपर ये कहते हैं ना, बोझा डाल दिया जाता है कि शादी चलनी तो इसी के हाथ से है, क्योंकि वो पूरा रिचुअली इस तरह सेट किया गया है। जब लड़की पैदा होने से, जब वो जवान होती है, जब वो शादी के लिए, उसके बचपन से ही प्लानिंग होने लगती है शादी की, तो ऑलरेडी वो बर्डन से ही आ रही है ना। आज का नहीं है एक रेट कि उसने डिवोर्स ले लिया और पूरा कंडीशनिंग हो रही कंडीशनिंग ही ऐसी है, राइट। अब बल्कि जब उसने डिवोर्स ले लिया या वो सेपरेशन में, मैं कहती हूँ अब तुम अपने ऊपर काम करो। अब वो अनकंडीशनिंग करनी पड़ेगी ना। यू डिसाइडेड, वेरी गुड, बट अब तुम ये देखो कि मुझे कैसे दूसरों की नहीं सुननी है। वो जो हम ईयरपॉड्स लगाते हैं ना, अब वो लगाने की जरूरत है, क्योंकि इतने साल सुनने के बाद तो कुछ भी नहीं मिला ना। नॉइस कैंसलेशन। आपकी कंडीशनिंग जब आपके हाथ में नहीं थी, तब आप किसी के कंडीशनिंग में थे, अब आप निकल गए। एंड अभी तो ना रीना, वी आर इन अ वर्ल्ड जहां पे आप कुछ भी कर लो, गलत विमेन पे आता है। अगर हम ड्रेस अच्छे से कर लेते हैं तो ये तो ऐसा पहन के आई है, ऐसा करके आई है। तो ये हमारा इंडिया इज लाइक मेल ओरिएंटेड, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। हम उसको ऐसे नहीं देखते कि ये मेल मेल की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सिक्योर फीमेल, बट हम उस रोल को जो मेल्स को दिया गया है उसको डोमिनेटिंगली नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। औरत उतना ही कमा रही है, कभी कभी ज्यादा भी कमा रही है उस घर में, राइट। बट ये जो डोमिनेंसी है जो आपकी कंडीशनिंग में है, आपके घर की कंडीशनिंग में भी नहीं है ना, आपकी एनवायरमेंटल कंडीशनिंग में बहुत सारी है। पूरा सोसाइटी में ही है। बच्चे कह देते हैं, हाँ बच्चे कह देते हैं मैं तो लड़का हूं, मैं थोड़ा ना करूंगा ये काम। छोटा बच्चा कह देता है राइट। कि ये मेरा काम थोड़ा ना है, पोछा लगाना मेरा काम थोड़ा ना है। राइट, दैट इज ट्रू। आप, तो वो वहां से आ रहा है, तो वो ब्लेम से। अब तुम्हें क्या करना है, वो ब्लेम जो तुमको मिल रहे हैं, लगाओ ईयरपॉड्स और अपनी जर्नी शुरू करो। अगर आपके पास बच्चा मेल है तो वहां तक नहीं जाना चाहिए, आगे की जनरेशन अपने हाथ में ले लो। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स को डर नहीं है कि उनके बच्चे को अगर सेम जेंडर से प्यार है तो वो करवा रहे हैं शादी, क्योंकि वो उस कंडीशनिंग को ब्रेक कर रहे हैं। तो कोई तो हिम्मत कर रहा है। तो अगर तुमने हिम्मत कर ली है सेपरेट होने की, तो किसी भी कंपनी के ईयरफोन्स लगाओ और जिंदगी आगे बढ़ाओ। ओके। एंड सीक सम कोई भी प्रोफेशनली, क्योंकि आप सीख तो हेल्प, हाँ वो खुद नहीं होगा, वो खुद बार नहीं बार होगा। मेंटली डिस्टर्ब होंगे, तो टॉक टू अ पर्सन हु कैन हील यू। दैट कुड बी योर फ्रेंड राइट। who can guide you, that could be anybody, and if you do not have anybody, then go to somebody who can help you better. Yeah. Okay, so सुबह मैं इस पे हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपने शादी में जितने लगा लिए ना, लाखों रुपए, उसका 1% अपनी मेंटल हेल्थ पे लगा दो। उतना भी नहीं लगता है मेरे ख्याल से, आई थिंक उससे भी कम उतना भी नहीं लगता लगता है। है। डिपेंड्स कि आप किस तरह का आपको हीलिंग प्रोसेस चाहिए। इट Depends. डिपेंड्स, Right. Okay. है ना। Khushbu, it's राइट। lovely, lovely talking to you. And I think the discussion that we're having right now on a parenting podcast with our holistic wellness, the only purpose of our doing podcast is to bring different topics on parenting. Parenting does not राइट। end with raising children. Parenting does not end with teen issues or toddler issues. Parenting involves relationship. Parenting involves teamwork. Parenting involves the role of father. Parenting involves the role of mother, the mental peace of mother, the calm mother. एंड हमारा तो लोगो भी ये कहता है, काम मदर रेजेस कनेक्टेड चिल्ड्रन एंड हैप्पी फैमिलीज। अगर माँ खुश नहीं है ना घर में, राइट। तो आप बढ़ ही नहीं सकते एक कनेक्टेड फैमिली की तरफ। आप कितना मर्जी पोर्ट्रे कर लें, लेकिन अंदर से अंदर आप हमेशा डिस्कनेक्टेड रहेंगे, तो अगर आपको अच्छा परिवार चाहिए तो मदर की मेंटल हेल्थ पे जरूर काम कीजिए।
और बिल्कुल, बाकी आई बाकी एग्री। बाकी सब अपने आप देखेंगे, सॉर्टिंग हो रही है, सब अलाइन हो जाता है। ओके, सो थैंक यू ट्रू। सो मच खुशबू, एनीथिंग लास्ट दैट यू विश टू? थैंक यू रीना, थैंक यू सो मच। आई रियली लाइक दिस पॉडकास्ट क्योंकि मुझे काफी मजा आता है इन सब बातों पे बात करने के लिए। सो थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट्स रियली प्लेजर टू हैव ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू सो आई मच। होप हमारी इस कॉन्वर्जेशन से किसी ना किसी को हेल्प हो। Definitely, definitely. We will put it on your page and our page and whatever possible pages of श्योर our friends, we do that. And so that it reaches श्योर a श्योर। lot of people out there and may help. जो जहाँ पे काउंसलर साइकोलॉजिस्ट और एक काउंसलर बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रोफेशनल लेके आ गए। Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy